Dear students and viewers, welcome to New English classes by Eken sir. Today we are going to discuss about the tense and their structures. Dear students, ମୁଁ ଟେନ୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଅତି ଇଜିଲି ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କାମରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି, ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିଛି, ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ଆମର ଟେନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯଦିଓ ତିନି ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ କଥା ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଟେନ୍ସ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଟେନ୍ସ ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ। ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆମେ ଟେନ୍ସ ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ। ଯଦିଓ ଆରମ୍ଭ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ହୁଏତ ଟେନ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସୋ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ଆଡମିଟ୍ କରିଛେ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଟେନ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ୟୁଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଟାଇମ୍ ରୂପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଛେ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ ଟେନ୍ସର ଚାରୋଟି ଫର୍ମ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଡ଼େ ଟେନ୍ସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସର ଆମର ଚାରୋଟି ଫର୍ମ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସର 4 ଫର୍ମସ୍ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ କଥା କହିଛେ। ପ୍ରଥମ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମ ହିସାବରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ଅର୍ ସିମ୍ପଲ୍, ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଫର୍ମ ରଖାଯାଇଛି, ତା'ର ଚାରୋଟି ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ଅର୍ ସିମ୍ପଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଫର୍ମ ରହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସର ଚାରୋଟି ଫର୍ମ ରହିଲା, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଯେମିତି କହିଲା ଆମେ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ବା ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ବା ପରଫେକ୍ଟ, ପରଫେକ୍ଟ କହିଲେ ଟେନ୍ସରକୁ ଚାରୋଟି ଫର୍ମ ରଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଫର୍ମ ଆସିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଫର୍ମେଟିଭ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍। ତାଠୁ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଫର୍ମ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍ ଅର୍ ସିମ୍ପଲ୍, ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଫର୍ମ ହେଲା ଟେନ୍ସ ମାନଙ୍କର, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପୁଣି ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମର ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଆସିବ, ସବ୍ ଫର୍ମ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପଲ୍ର ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ କରିପାରିବା, ନେଗେଟିଭ୍ କରିପାରିବା, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ କରିପାରିବା, ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପରଫେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର କରିପାରିବା ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଫର୍ମକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଏତ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆମେ ଟେନ୍ସକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ରଖିଛେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କରିଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମକୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ରଖିଛେ, ସେଇ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭାଗରେ ସବୁ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଭର୍ବ ଫର୍ମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ହଁ, ଆମ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ ସମୟରେ ଭର୍ବ ଫର୍ମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି। ଆମେ ସେଇ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ରଖିଛେ, ସର୍ଟ ଫର୍ମ ରଖିଛେ, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟଲି ବୁଝିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଯିବା ଭାରି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟିକେ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଛି ମୁଁ ଯେ 5ଟି ଭର୍ବ ଫର୍ମକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 5ଟି ଭର୍ବ ଫର୍ମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛେ। ସୋ ପ୍ରଥମ ଫର୍ମ ଆମେ ଲେଖିଛେ V1 ଲେଖିଛେ। V1 ଅର୍ଥ ବେସ୍ ଅର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଭର୍ବ।
V1 आम कौन कह V1 कहले आम कौन बुझा ना बेस और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब आम भल भाव जाचे सब मेन वर्ब गुड़ाकर प्रत्येक मेन वर्ब गुड़ाकर 5टी फॉर्म रही पार सो से भितर आम प्रथम रखीचे V1 करें V1 टा किए V1 क्या कह आम बेस और प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब देख मुझे किसी एग्जांपल दे देछि हमर बेस फॉर्म हिसाब से किए एग्जांपल आछंती गो डू इट शीट प्ले डांस ड्रिंक अर्थात एमाने होउछंती मूल वर्ब गुड़ाक बेस फॉर्म गुड़ाक एमाने होउछंती सबु मेन वर्ब रो मूल फॉर्म गुड़ाक सो आम इस कहले V1 कले कौन बुझा ना प्रत्येक वर्ब रो मूल फॉर्म टी बुझा जमीन कि गो एला V1 डू V1 इट V1 से सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म एवं फिफ्थ फॉर्म रही सो आम जानीगले V1 कहले आम बुझे कौन ना बेस और प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब तापर V2 कहले आम कौन बुझा V2 कहूँ कौन ना पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रत्येक मेन वर्बर गोटे सेकेंड फॉर्म अच्छे जैसे V2 बोली कहते अर्थात ताको मध्य पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोली कह जाए तापर आसवा आम एग्जाम देदेवा देखा V2 एग्जाम्पल अच्छी देख वेंट अच्छी डिड अच्छी सैट अच्छी एट अच्छी रान अच्छी वाच्ड अच्छी अर्थात देख यू वर्ब गुड़ाकर मूल फॉर्म देख वेंट मूल फॉर्म होता गो डिड मूल फॉर्म हो डू सैट मूल फॉर्म हो शीट एट मूल फॉर्म हो इट रान मूल फॉर्म हो रन वाच्ड मूल फॉर्म हो वाच ताते एम सब सेकेंड फॉर्म V2 फॉर्म कले कौन बुझा ना पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को बुझा ताले आम V3 रे कौन बुझा V3 क्या कहवा V3 हूँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हम V3 बोली कहवा अच्छा V3 कहले हम कौन बुझे अर्थ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात वर्ब तृतीय फॉर्म टी देख पे मैंने गन लिखीचे डन लिखीचे इटेन लिखीचे प्लेड लिखीचे ड्राइवन लिखीचे गन हूँ गोर V3 फॉर्म गो हूँ V1 वेंट हूँ V2 गन है V3 ठीक से भाई डू है V1 डिड है V2 डन है V3 किमती इटेन नहीं आम V3 तार इट हूँ प्रेजेंट फॉर्म तापर एट है V2 इटेन है V3 एक्जाक्टली प्लेड और ड्राइवन मतलब से बचर अच्छी प्ले प्लेड प्लेड ड्राइव ड्रोव ड्राइवन ओके ये गला हारी आमर PP फॉर्म ऑफ द वर्ब देन V4 को जीवा आम V4 क्या कहवा वर्ब फोर बोली क्या कह जाए आम नॉर्मली प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म माने कौन बुझे पे और जेरेंट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट फॉर्म को आम V4 बोली कही था प्रेजेंट पार्टिसिपल किंबा जेरेंट फॉर्म को आम V4 बोली कही था से हिसाब से अर्थात आम ये बुझीगल प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट फॉर्म अर्थात वर्ब रो ING फॉर्म गुड़ाक वर्ब रो ING फॉर्म हो कौन ना V4 अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंट फॉर्म लिखी देख रीडिंग लिखते रीड हूँ मूल वर्ब कि ING रही रीडिंग करे सीट हूँ मूल वर्ब सीटिंग करे इट हूँ मूल वर्ब इटिंग करे अर्थात एम सब V4 रे अच्छा जेरेंट बा पार्टिसिपल फॉर्म तापर V5 कथा मेंशन करे V5 कौन ना प्रेजेंट फॉर्म और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस किंबा ES लगे दरकार आम V5 कले कौन बुझा ना गोटे वर्ब रो बेस फॉर्म होइतिबा ता सहित एस किंबा ES जोग होइतिबा दरकार ताले से V5 टे जुग आसीगला बा V5 फॉर्म बोली कहि परिबा एक्जाक्टली देखा आम गो हूँ पे मूल फॉर्म से ES लगी गोज करा जाइछि सिमिति डज रखा जाइछि डज रो बेस फॉर्म मूल फॉर्म होछि डू से ES आड करा जाइछि सिमिति इट्स लिखा जाइछि इट्स होछि बा इट होछि मूल फॉर्म से एच लगा जाइछि ड्रिंक्स लिखा जाइछि ड्रिंक होछि बेस फॉर्म से एच लगे ड्रिंक्स करा जाइछि प्ले होछि मूल फॉर्म बा बेस फॉर्म से एच लगे प्लेज करा जाइछि अर्थात V5 है एभली फॉर्म जोटा कि बेस फॉर्म सहित एच बा ES जोग करिया को पड़े डियर स्टूडेंट्स आम वर्ब फॉर्म से जानीगले क्या वर्ब फॉर्म गुड़ाक जाना निहाती आवश्यक था जेहतु मुझे स्ट्रक्चर रे से सर्ट फॉर्म सब यूज कर तो तुमने सहजरे जानिले स्ट्रक्चर को बुझीपार और जानवर भल भाव देख जब भिडियो को मोर जापर तेल प्रेजेंट फास्ट और फ्यूचर टाइम को भल भाव बुझा चेष्टा कर एग्जाम्पल सहित तुम सहजरे जापर आस आम बर्तमान प्रेजेंट टेन्स को जीवा प्रेजेंट टेन्स विभिन्न स्ट्रक्चर विषय जाना तापर एग्जाम्पल सहित बुझापी चेष्टा करवा मुझे प्रत्येक टेन्स फॉर्म चारोटी सब फॉर्म रही सो आम प्रेजेंट सिंपल को आसीगले प्रथम प्रेजेंट सिंपल जो चारोटी सब फॉर्म रहा कथा कही प्रथम कथा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन हवा उचित आम जानी प्रथम अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हूँ
सब्जेक्ट रहिबो V1 रहिबो बा V5 रहिबो प्लस ऑब्जेक्ट रहिबो ता अर्थ सिंपल प्रेजेंट रो हमर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हला सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखले बोले ऑब्जेक्ट को मु ब्रैकेट करी ता अर्थ ऑब्जेक्ट को न लिखिले मध्य चलिबो लिखिले मध्य चलिबो किछ असुविधा नै प्रथम ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट कर देछि सो हम स्ट्रक्चर जानि गेले सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट देखो एग्जांपल देखिबा ही ईट्स राइस ही ईट्स मैंगो लिखी आम ना कि ही ईट्स मैंगो आम लिखी V1 और V5 अच्छा V5 लिखी तो से ईट्स एच लगी जाइए ना कि ही ईट्स मैंगो नहीं कि आम रूल हिसाब से कहते सब्जेक्ट सब्जेक्ट है ही भर्बटा V1 हवा कि V5 हवा दरकार ये V5 है मैंगो अच्छे ऑब्जेक्ट ओके आम अवश्य गोटे स्ट्रक्चर अच्छी जदि वाक्यटी प्रेजेंट सिंपल रहे एवं कर्ता तृतीय पुरुष एकवचन होता है ताहले आमर मेन क्रिया रे बा मुख्य वर्ब रे एस किंबा ईएस जोग करा जाय थाए आ थोड़े रिमाइंड कर दउची जदि वाक्यटी प्रेजेंट सिंपल रे थाए एवं कर्ता तृतीय पुरुष बा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बा तृतीय पुरुष एकवचन होई थाए तेबे सेही समय रे मेन वर्ब रे जदि वाक्य अफर्मेटिव होता है ताले मेन वर्ब रे एस किंबा ईएस जोग करा जाए सेट में हमें ही ईट्स मैंगो बोली लिखी जाए सेकेंड एग्जांपल देछे वी प्ले क्रिकेट एट V1 यूज करिछे प्ले होची बेस फॉर्म एतपय वी प्ले क्रिकेट हम करते होची बेस फॉर्म तो लिखितले वी प्ले क्रिकेट थर्ड वाक्य लिखिछे आई ईट मैंगो ये भी ईट होची बेस फॉर्म मतलब V1 फॉर्म सो आई ईट मैंगो तीनटा एग्जांपल दे देले सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्रथम वाक्यटी हमर V5 रहिछि एवं द्वितीय वाक्य प्ले एंड ईट दीटाक V1 रहिछि एवं उभयंकर समस्त ऑब्जेक्ट मध्ये हम रखिछे सो ये गला प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर तापर आसी जिबा हमें से प्रेजेंट सिंपल आ गोटे एग्जाम थिला हम पाखरे राम गोज टू स्कूल देख पड़े एठी भी गोज लिखा है से कथा कहि परिबा गो हो जेतु बेस्ट फॉर्म ता संगे हम एस ऐड करिचे ता अर्थ हमें एट V5 रो व्यवहार करिचे एई रूलटा आउथरे रिमाइंड कर दउची जे वाक्यटी प्रेजेंट सिंपल रे थाए एवं कर्ता तृतीय पक्ष एकवचन होई थाए ताले मुख्य क्रिया रे एस किंबा एस जोग कर जाई परिबो से दृष्टि राम जेतु थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हम एठी गोज करि दैचे आमे वर्तमान जीवा प्रेजेंट सिंपल रो नेगेटिव स्ट्रक्चर को प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव स्ट्रक्चर कहूची कौन हो पार देखा सब्जेक्ट थी डू और डज रस नट रस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट कर दी आवश्यक है कर नकले चलो तार आम आउ थे देखीदे जे प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव स्ट्रक्चर हूँ सब्जेक्ट डू और डज प्लस नट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं कि आम प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव स्ट्रक्चर कौन देखा प्रथम सब्जेक्ट नवा ता सहित डू किंबा डज नहीं पार प्लस नट नवा प्लस V1 नवा प्लस ऑब्जेक्ट नवा देख स्ट्रेट से अनुजाई आम लिखीचे देख ही डज नॉट प्ले फुटबॉल आम वाक्यटी कौन लिखीचे ही डज नॉट प्ले फुटबॉल आम लिखीचे लिखीचे ही डज नॉट प्ले फुटबॉल ओके स्टूडेंट्स आम एग्जाम्पल दौले ही डज नॉट प्ले फुटबॉल जो एग्जाम्पल नहीं स्ट्रक्चर कौन थी कि सब्जेक्ट थी टू और डज प्लस नॉट प्लस V1 रहा कथा देखो से अनुसार लिखते सब्जेक्ट ही डू डज डज को नहीं नॉट नहीं प्लस प्ले फुटबॉल ऑब्जेक्ट मतलब फुटबॉल रखीचे सो रूल हिसाब से कहीपर आम कही सारी जदि वाक्यटी प्रेजेंट सिंपल थी कर्ता तृतीय पक्ष एकवचन होता है मुख्य क्रिया रे आम डू डज लगे कथा किंतु ये वाक्यटी नेगेटिव स्ट्रक्चर अच्छे से आम डू बदल रे डज करें साहयकारी क्रिया क्या नहीं ना डज को रखीचे ही डज नॉट प्ले फुटबॉल आम एक कथा भी आउ रिमाइंड करदे स्ट्रक्चर समस्त मन पकई दूसरी जो स्टूडेंट मन रखी दियो जदि वाक्यटी प्रेजेंट सिंपल रे नेगेटिव किंबा इंटरोगेटिव रे रहउची एवं कर्ता तृतीय पक्ष एकवचन रहउची ताले साहाय्यकारी क्रिया हिसाब रे आमे डज को नहीं परिबा डू बदल रे डज को नहीं पारे केतेबेले जदि वाक्यटी प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव किंबा इंटरोगेटिव हेची एवं कर्ता तृतीय पुरुष एकवचन होची ताले से भली केस रे आमे डज को साहाय्यकारी क्रिया हिसाब नहीं परिबा आ मुख्य क्रिया रु एस बा एस को रिमूव करि परिबा जदि वाक्यटी मुख्य क्रिया एस एस थाए और वाक्यटी नेगेटिव करिया पे कहा जाए ताले डज नॉट किंबा हमर नेगेटिव बा इंटरोगेटिव करिया चेष्टा करा जाए ताले डज लागि गला परे मुख्य क्रिया रु
एस बै एस को हटे दिज्व ये आम मुख्य वाक्य नाला कि आम डायरेक्ट नेगेटिव वाक्य करते से आम कौन कर डज को साहाय्यकारी क्रिया से व्यवहार करचे प्लेयर सिंपली रखा जाए कि व्यवहार कर जाए ना। सो नेगेटिव स्ट्रक्चर कौन रखिले डू और डज हो पार प्लस सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 से अनुसार कौन है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। आम सेकेंड देखा सेकेंड स्ट्रक्चर कौन कवर करुचे दे डू नॉट रीड द बुक दे डू नॉट रीड द बुक ये डज बदल डू नहीं कारण ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नुह प्लुराल नंबर अच्छी से दे डू नॉट आम दुईटा नहीं डू और डज कर दुईटा नहीं पार डज भी नहीं पार प्लस डू भी नहीं पार डज के ना तृतीय पुरुष एक वचन सब्जेक्ट थी तो आम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखा प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कौन अच्छे देखा प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कौन अच्छी ना प्रथम डू कि डज नवा प्लस सब्जेक्ट नवा प्लस V1 नवा प्लस ऑब्जेक्ट नवा गोटे क्वेश्चन मार्क ना कही आम तार प्रथम कौन नवा प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हूँ प्रथम आम डू और डज नवा सब्जेक्ट नवा प्लस V1 नवा प्लस ऑब्जेक्ट नवा क्वेश्चन मार्क चिन्हटे नवा से हिसाब से देखा आम एग्जाम ठीक देचे कि नहीं डज शी कुक राइस हाँ प्रथम डज की डू नवा कथा आम नहीं डज डज शी कुक राइस से भात रांधती कि हाँ बा राइस रांधती कि आम डज नहीं डज कहीं ना पुणी कही जेहेतु कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन अच्छी आम डज को साहाय्यकारी क्रिया रूप नहीं पार जेहेतु सी हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से आम डज नहीं डज शी कुक राइस सेकेंड वाक्य लिखिते डू यू हेल्प मी तुम्हें मत साहाय्य कर ये डू को नहीं कारण यहाँ यू तृतीय पर्सन नुह आम सेकेंड पर्सन आसी जाऊँगी आम डू को व्यवहार करते स्ट्रक्चर से देखा प्रथम डू डज नि प्रथम वाक्य डज द्वितीय वाक्य डू सब्जेक्ट प्रथम वाक्य सी द्वितीय वाक्य यू हूँ V1 देख कुक अच्छे V1 हेल्प V1 ऑब्जेक्ट प्रथम वाक्य अच्छे राइस द्वितीय वाक्य अच्छे मी क्वेश्चन मार्क देखिए एक्जाक्ट पलि आसला ना आम स्ट्रक्चर अनुଯାयी डू डज सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क से अनुଯାयी डज सी कुक राइस ये भी पलि आसला आमर देखा नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर अर्थात दुईट जाक वाक्य रहा दरकार नेगेटिव इंटरोगेटिव हो प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य हम देखा नेगेटिव इंटरोगेटिव कौन आसुच्चंते से रूल हिसाब से प्रथम अच्छी देख डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं रूल कहूँ आम जब या करवा प्रथम कौन नवा डू और डज नवा सब्जेक्ट नवा नॉट नवा V1 प्लस ऑब्जेक्ट नवा से रूल हिसाब से जदि आम करवा देख पे नेगेटिव इंटरोगेटिव जोड़े उपाय आम कर आम यही वाक्य जो प्रथम टच लिखिले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट किंतु जदि आम नॉट टी सब्जेक्ट पर न लगे आमर साहाय्यकारी क्रिया परे परे लगेबा ताहले नॉट रो कंट्राक्ट फॉर्म बा शॉर्ट फॉर्म यूज करिया को पड़िबो आम दुईटा करी हम दुईटा जन देछि दुईटा कर देछि जदि डू डज परे परे आम नॉट रो फॉर्म टी व्यवहार करबा ताहले डू डज परे परे आम नॉट रो कंट्राक्ट फॉर्म बा शॉर्ट फॉर्म अर्थात NOT बदल N अपोस्ट्रोफी T अर्थात कंट्राक्ट फॉर्म रे लिखा चेष्टा करबा किंतु सब्जेक्ट पर जब आम नॉट को व्यवहार कर नॉट संपूर्ण लिखा पड़ो देख आम स्ट्रक्चर से लिखीचे और एग्जाम दबा कौन देचे डज ही नॉट गो देयर एग्जाम कौन अच्छी डज ही नॉट गो देयर आम सब्जेक्ट ही अच्छी ही परे परे नॉट थिला से नॉट टी आम संपूर्ण लिखीचे डज ही नॉट गो देयर देखा सेकेंड एग्जाम कौन देचे आम डू यू नॉट हेल्प मी आउट एग्जाम थिला डू यू नॉट हेल्प मी एठी भी नॉट आम संपूर्ण लिखीचे मुझे आम नेगेटिव इंटरोगेटिव जोड़े फॉर्म कर गोटे जगह नॉट को आम चाहिए सब्जेक्ट पर संपूर्ण लिखिपर जब नॉट को आम साहाय्यकारी क्रिया पाखे लिखा चाहिए नॉट रो कंट्राक्ट फॉर्म बा शॉर्ट फॉर्म लिखा पड़ो आम तार देखिए कंट्राक्ट फॉर्म आम यूज कर देखिए देख डू प्लस डज प्लस नॉट रो कंट्राक्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आम द्वितीय भी सेया करें से जहाँ कही डू डज प्लस नॉट रो कंट्राक्ट फॉर्म रहा सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट आम कंपलसरी करना ब्रैकेट कर देते देखा डज नॉट ही गो देयर बाकी कौन अच्छी डज नॉट ही गो देयर ये एक्जाक्टली जेहतु थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट थिला आम डज को नहीं गले डज नॉट ही गो देयर तार फर्दर वाक्य करचे डोंट यू हेल्प मी ये बुझीगले आम मतलब ये कौन करते फॉर्म नहीं अर्थात कंट्राक्ट फॉर्म यूज करचे डोंट यू हेल्प मी आम प्रेजेंट सिंपल सरीगला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बर्तमान जावा
বা ইম্পরফেক্ট যেটা প্রেজেন্ট প্ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କହୁଛେ বা প্ରେଜେଣ୍ଟ ইম্পরফেক্ট কହୁଛে আমি তা স্ট্রকচর ଦେଖିବା তার ফির চারটা ফর্ম আসিব আমার প্রথম হচ্ছে আফার্মেটিভ ଯିବା আফার্মেটিভ সবজেক্ট কোন হলা সবজেক্ট ইজ আমার প্লস V4 প্লস অবজেক্ট অর্থাৎ প্রেজেন্ট সিম্পল সরিগলা পরে প্রেজেন্ট প্ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ কে আসছে প্রেজেন্ট প্ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ র আফার্মেটিভ স্ট্রকচর কোন হচ্ছে না সবজেক্ট ইজ আমার প্লস V4 প্লস অবজেক্ট দেখো সে অনুযায়ী লিখিতে কি না আমি I am reading the book yes সে লেখা যাইছি I अच्छी इज आमर आम अच्छी तापर रीडिंग अच्छी तापर भी ऑब्जेक्ट अच्छी अर्थात आई एम रीडिंग द बुक सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कौन दे आर प्लेइंग क्रिकेट ये आम से भी फॉर्म यूज करे सब्जेक्ट रखीचे दे इज आमर आर रखीचे तापर भी फोर प्लेइंग रखीचे तापर ऑब्जेक्ट क्रिकेट नहीं थर्ड एग्जाम्पल कौन देचे शी इज वाचिंग टीवी देख सब्जेक्ट है शी इज आमर इज भर फॉर वाचिंग देन टीवी है ऑब्जेक्ट अर्थात आम कौन करदे ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अर्थात इम्परफेक्ट अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को कवर करेंगे आम बर्तमान जावा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नेगेटिव स्ट्रक्चर को आम नेगेटिव स्ट्रक्चर को जावा नेगेटिव स्ट्रक्चर कौन अच्छी ना सब्जेक्ट इज आम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कौन कौन आसवा दरकार सब्जेक्ट इज आम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट यही स्ट्रक्चर आम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नेगेटिव व्यवहार कर वाक्य देखिए अच्छी कि नहीं देख प्रथम सब्जेक्ट थी कथा देर है सब्जेक्ट इज आम आर आसला नट आसवा कथा नट आसी V4 प्लेइंग आसी क्रिकेट है ऑब्जेक्ट पलि आसला कि आम जो स्ट्रक्चर लिखी सब्जेक्ट इज आम नट प्लस V4 सब्जेक्ट इज आम नट प्लस V4 एक्जाक्टली आम से स्ट्रक्चर अप्लाई करें दे आर नट प्लेइंग क्रिकेट गला एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल कौन देते शी इज नट वाचिंग टीवी ये भी एग्जाम्पल गला हरी थर्ड एग्जाम्पल देते आई एम नॉट रीडिंग द बुक अर्थात तीन एग्जाम हम क्लियर करदे मैंने स्ट्रक्चर अनुसार देख प्रथम अच्छे आई है सब्जेक्ट आम इज आम आम आसला नट रहा कथा नट रही भर फॉर बा रीडिंग रही द बुक है ऑब्जेक्ट तार हम यही एग्जाम तीन कंप्लीट करदे नेक्स्ट आम आस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखा कौन अच्छी ना प्रथम आम इज आम जहाँ गोटे नवा इज आम नवा सब्जेक्ट नवा V4 नवा ऑब्जेक्ट नवा क्वेश्चन मार्क दबा ना कि आम कौन करवा ना आम क्वेश्चन मार्क कवर करवा से अनुसार प्रथम इज आम नवा कथा नहीं देख इज ही रीडिंग द बुक प्रथम अच्छी इज सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट ना कि प्रथम रूल हिसाब से प्रथम इज आम जा था सो इज आम इज जाइए सब्जेक्ट ही गला रीडिंग आसूची ऑब्जेक्ट पड़े आसला एक्जाक्टली आम अदर एग्जाम्पल देखी अच्छी कि नहीं आर यू गोइंग टू स्कूल एक्जाक्टली से भाई देख आर है फास्ट यू गोइंग टू स्कूल थर्ड वाक्य कही आम आई रीडिंग द बुक एक्जाक्टली से फॉर्म यूज कला आम आई रीडिंग द बुक अच्छा एक्जाक्टली स्ट्रक्चर अनुसार आम इज आम प्रथम सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट नहीं जाए आम नेगेटिव इंटरोगेटिव की जावा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कौन से देखा प्रथम से इज आम प्रथम रहा सेकेंड अच्छे सब्जेक्ट नट V4 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं कि आसीगला मोर कौन पलि आसो ये तो पलि आसो कौन कौन आस प्रथम इज आम आग आसो सब्जेक्ट नट V4 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर आम क्वेश्चन मार्क फॉर्म टी अप्लाई करवा राइट देख से अनुसार ठीक करें कि नहीं प्रथम इज आम नवा कथा नहीं आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट आर प्रथम अच्छी इज आम आर प्रथम ने सब्जेक्ट वी ने नट नवा था नट नहीं V4 प्लेइंग ने क्रिकेट नहीं गले कि आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट एक्जाक्टली हम जहाँ से करदे पुणी शी इज शी नॉट इटिंग मैंगो देख बैकिंग पलि आसला आम स्ट्रक्चर हिसाब से प्रथम इज आम जो था इज आसी सब्जेक्ट नट V4 प्लस ऑब्जेक्ट इज शी नॉट इटिंग मैंगो थर्ड वाक्य आस कौन आम आई नॉट रीडिंग द बुक एक्जाक्टली से स्ट्रक्चर अनुसार आम इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कंप्लीट करदे इंटरोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट कर देचे आम तार सेकेंड फटा जो कही थी नट को जब आम आरंभ लिखा चेष्टा करवा तार कंट्राक्ट फॉर्म रही वाक्य कर देख इज आम जाइए नट लगला नट कंट्राक्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क से अनुसार आर नट दे वाचिंग टीवी कही कंट्राक्ट फॉर्म बाछिले आम जो थी हेल्पिंग वर्ब थी से पाखर ही लगे पड़ा कंट्राक्ट फॉर्म लगी देख आर नट दे इज नट ही आम नट आई ये सब गुड़ाक से कंट्राक्ट फॉर्म इज नट ही प्लेइंग एंड आम नट आई डूइंग द वर्क सो ये सरीगला आम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य सो आम बर्तमान आसीजा प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट
affirmative structure को आसी जिबा present affirmative structure कोन देखिबा present perfect affirmative structure कोन अछि subject have or has v3 plus object सब्जेक्ट रहइबा प्लस have has रहइबा प्लस v3 रहइबा प्लस ऑब्जेक्ट रहइबा से हम जे देख हम एग्जांपल भी दै छै we have invited them she has got the prize जोड़े एग्जांपल दै छै रूल हिसाब प्रथम सब्जेक्ट नै छै we बा she तापरे have has नै छै गोटे देख have जाई छै बा has जाई छै तापरे v3 invited और got तापरे them and prize अर्थात दुईटा का एग्जांपल रे हम स्ट्रक्चर को फॉलो करछे प्रथम जाई छै कोन सब्जेक्ट जाई छै द्वितीय वाक्य रे ही शी शब्द जाई छै प्रथम वाक्य रे we शब्द गेला तापरे have has रो have द्वितीय वाक्य रे has थर्ड वाक्य आसी गेला कोन हमरो इनवाइटेड और सॉरी हमारा मेन वर्ब आसला इनवाइटेड v3 त गॉट मथला v3 तो स्ट्रक्चर अनुसार आमे फॉलो करछे जहां जहां भी स्ट्रक्चर लिखितले से अनुसार में एग्जांपल दे दै छै हम देखें नेगेटिव वाक्य कौन लिखी है आम प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव वाक्य कौन करें स्ट्रक्चर दायरा प्रथम स्ट्रक्चर कौन दि जाइए तापर आम जहाँ करवा कथा करवा सो रूल हिसाब से आम देखा जे नेगेटिव स्ट्रक्चर कौन रहा रूल हिसाब से नेगेटिव स्ट्रक्चर होची सब्जेक्ट हैव हैज नॉट प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात एटा होची प्रेजेंट परफेक्ट रा नेगेटिव स्ट्रक्चर एई एमिति वाक्य आम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखि पारे नेगेटिव वाक्य लिखि पारे अर्थात ही हैज नॉट बॉट द बुक देखा स्ट्रक्चर अनुसार he has not bought the book he रहला subject have has not रहला bought book 3 but the book means v3 भी रहला what exactly second वाक्य कौन देता में they have not known me exactly से रहला subject have not plus v3 plus object मध्य में मेंशन करछे आमे इंट्रोगेटिव वाक्य देखा प्रेजेंट परफेक्ट रो इंट्रोगेटिव केमि आसीची ता स्ट्रक्चर कौन अच्छी ना प्रथम हाजाब रब्जेक्ट v3 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव एक्जाक्टली से स्ट्रक्चर आसो कौन आसो ना प्रथम हाज रखा सब्जेक्ट रखा प्लस v3 ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट कर प्लस क्वेश्चन मार्क आम से अनुसार देख वाक्य लिखीचे कि नहीं आम से अनुसार वाक्य लिखीचे देखी ना प्रथम कह हाज रहा कथा हाज रहा सब्जेक्ट रहा कथा यू रहा v3 रहा सीन रहा ऑब्जेक्ट अच्छी दिस अर्थात प्लस क्वेश्चन मार्क भी रहीगला सो स्ट्रक्चर अनुसार वाक्य आम लिखीचे अर्थ आम प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गले और सेकेंड वाक्य कौन लिखाई हाज ही टेकन माई पेन एक्जाक्टली से जिन जहाँ स्ट्रक्चर फॉलो कर आम कम्प्लीट करें आम देखा प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य कौन रखा जाए प्रथम कौन रखा देखा आम प्रथम अच्छे हाज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अर्थात ये हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव इंट्रो वाक्य आसीगला प्रेजेंट नेगेटिव इंट्रो वाक्य आम ये जिन कभर करें कौन रहा प्रथम दरकार प्रथम हाज रही नॉट रही सब्जेक्ट रही v3 रही ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देखो से अनुसार करें कि नहीं एक्जाक्टली दुईटा फॉर्म रहा दरकार यहाँ कंट्राक्ट फॉर्म यूज कर सो से अनुसार कौन देख हाज नॉट ही गन देयर has not he gone there has हाबुर प्रथम हाज जाइए कंट्राक्ट फॉर्म नॉट थिला सो नॉट लगे कंट्राक्ट फॉर्म has not he gone there शॉर्ट फॉर्म लिखा जाइए आम स्ट्रक्चर को फॉलो कर अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर मध्य आम कन्फर्म हो गले तार सेकंड एग्जांपल कौन थिला have not you invited me exactly has हाबुर हाव आछि कंट्राक्ट फॉर्म सारे नॉट यू रखिचे देन you प्लस v3 invited then object तार सेकेंड फॉर्म जो कहते आम सब्जेक्ट पर भी नॉट लगे पार तार से फॉर्म देखा आम कौन देचे हाज हाव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क एक्जाक्टली जस्ट चेंज कर कहते अर्थात सब्जेक्ट पर आम नॉट व्यवहार करें सी अनुसार हाव यू नॉट डन दिस एग्जाम्पल पलि आसला हाव रहा सब्जेक्ट यू रहा यू पर नॉट नहीं गले सेकेंड वाक्य भी सेया कर हाज ही नॉट सीन यू अर्थात ये नॉट टी आम ही पर सब्जेक्ट पर व्यवहार करें प्रेजेंट परफेक्ट भी सरीगला आम बर्तमान आसवा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को प्रेजेंट पर टेंस लास्ट स्ट्रक्चर होची प्रेजेंट परफेक्ट देखा प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कौन आछि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कौन सब्जेक्ट रहिबो प्लस हाज रहिबो प्लस बीन रहिबो प्लस v4 रहिबो प्लस ऑब्जेक्ट रहिबो अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर केमिति रहिबो ना प्रथमे सब्जेक्ट आसीबो देन हाज आसीबो प्लस बीन रहिबो प्लस v4 रहिबो देन ऑब्जेक्ट पळे आसीबो ताले कोन कोन से आसीबो प्रथमे सब्जेक्ट हाज बीन v4 प्लस ऑब्जेक्ट से इन देख स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर अनुसार हम वाक्य ठीक लिखिते कि नहीं ही रहला सब्जेक्ट हाज रहा प्लस बीन रहा रनिंग है v4 अर्थात ऑब्जेक्ट कंपलसरी नुहे आम से लिखी ना चलो
पलि आसला प्रथम वाक्य सेकेंड एग्जाम देखा वी हाव बीन डांसिंग ए विषय अच्छी वी रहा सब्जेक्ट हाव हाजर हाव आसला प्लस बीन रही जाइए डांसिंग है V4 सो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव वाक्य क्लीयर हो गला स्ट्रक्चर सहित आम क्लीयर कले आम देखा नेगेटिव स्ट्रक्चर कौन अच्छी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव स्ट्रक्चर कौन अच्छी ना सब्जेक्ट हाव हाज प्लस नट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट खाली नट आड करोटी ना हाज हाव पर नट व्यवहार कर देखा आम एक्जाक्टली वाक्य लिखी कि ना सेमती वी हाव नॉट बीन रीडिंग द बुक एक्जाक्टली आम कौन थी सब्जेक्ट वी नेले तापर हाव नहींचे तापर नट नवा था नट नहींचे तापर बीन नहींचे तापर V4 नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं जाइए से आम स्ट्रक्चर भी से सब्जेक्ट हाव हाज नट प्लस बीन प्लस V4 तो से आम लिखते कौन वी हाव नॉट बीन रीडिंग द बुक सेकेंड एग्जाम से नहीं शी हाज नॉट बीन ईटिंग दीज मैंगोज सो सेकेंड एग्जाम्पल क्लीयर अच्छे देखिए आम इंट्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन लिखीचे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इंट्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन रखा ना हावाज प्रथम रहा सब्जेक्ट बीन V4 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहा दरकार देखो से हावाज प्रथम अच्छी सब्जेक्ट बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देखो से एग्जाम्पल भी नहीं हाज ही बीन हेल्पिंग यू अर्थात स्ट्रक्चर जहाँ था हाज आगे जाता हाज जाइए सब्जेक्ट जावा सब्जेक्ट ही गला बीन जावा कथा बीन जाइए हेल्पिंग V4 जाइए ऑब्जेक्ट यू भी जाइए अर्थ आम यहाँ भी ठीक लिखीचे सेकेंड एग्जाम्पल देखा हाव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट एक्जाक्टली हाव हाजर प्रथम हाव गला सब्जेक्ट दे गला बीन जाइए प्लेयर आईएनजी फॉर्म अर्थात V4 प्लस क्रिकेट है ऑब्जेक्ट सो ये आम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इंट्रोगेटिव वाक्यटी कंप्लीट करदे स्ट्रक्चर सहित सेमती नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कौन आसूँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव स्ट्रक्चर एक्जाक्टली से अच्छी कौन ना हावाज नट हाव हाज प्लस नट अच्छी कंट्राक्ट फॉर्म रे देन द हाज हाव नट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ओके आम डायरेक्ट ही लिखे सब्जेक्ट बदल ही लिखी देचे सो आम सब्जेक्ट जाना सो हाज हाव नट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट से स्ट्रक्चर अनुजाई से स्ट्रक्चर अनुजाई आम जानीगले ये कौन रहा ना हाज हाव रहा प्लस नट रहा कंट्राक्ट फॉर्म देन सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट तो से अनुसार देखा क्वेश्चन में रखागला आमर एग्जाम्पल अच्छी ना सेम देखा हाज नट ही बीन हेल्पिंग यू एग्जाम्पल देखा पे हाज हाव प्रथम हाज हाव आसी नट कंट्राक्ट फॉर्म रहा सब्जेक्ट ही आसला बीन रहा हेल्पिंग आसला V4 तेज ऑब्जेक्ट आसला यू सेकेंड एग्जाम्पल देखा ठीक अच्छी ना स्ट्रक्चर कौन थी हाज हाव नट प्लस सब्जेक्ट देखा हाव नट अच्छी हाव अच्छी कंट्राक्ट फॉर्म नट अच्छी दे रहा बीन रहा एटिंग रहा मैंगो अर्थात स्ट्रक्चर अनुजाई एग्जाम्पल आम क्लीयर करदे तार सेकेंड स्ट्रक्चर जोटा कि आम नट रखा सब्जेक्ट पर बोली कही तार एग्जाम्पल देखी कौन दे हाज हाव प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट से अनुसार आम आत्म स्ट्रक्चर देख क्लीयर अच्छी कि नहीं प्रथम हावाज जावा कथा सो प्रथम हाफ जाइए सब्जेक्ट गला नट गला बीन प्लस रीडिंग गला सो रूल हिसाब से जहाँ प्रथम रहा कथा हाज हाव प्रथम रही हाज सब्जेक्ट नट बीन रीडिंग है V4 अर्थात ये सेंटेंस क्लीयर अच्छी सेकेंड वाक्य देखा हाज ही नट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स एक्जाक्टली देखा आम हाज हाव प्रथम हाज नहीं सब्जेक्ट नहीं कि नट नहीं बीन प्लस सिंगिंग सॉन्ग्स अर्थात ये सेंटेंस क्लीयर हो गला सो प्रेजेंट टेन्स सरीगला आम बर्तमान पास्ट टेन्स को जीवा पास्ट टेन्स आम जमी कभर आस्ते आस्ते कभर करदे पास्ट टेन्स स्ट्रक्चर प्रथम आसवा आम पास्ट सिंपली अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को जीवा पास्ट सिंपल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कौन देखा प्रथम प्रथम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अच्छी से रूल हिसाब से आम देखा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट रबर टू फॉर्म अर्थात पास्ट फॉर्म रहा ऑब्जेक्ट रही पार से एग्जाम्पल कौन देते आम ही बट मैंगो ही बट सब्जेक्ट ही बायर पास्ट फॉर्म बट ही बट मैंगो सेकेंड वाक्य वी प्लेड क्रिकेट वी है सब्जेक्ट प्ले बेस्ट फॉर्म इडी लगी प्लेड होती अर्थात V2 फॉर्म पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सो यहाँ स्ट्रक्चर क्लीयर हो गला
सो आम देखा नेगेटिव फॉर्म अर्थात पास्ट सिंपल नेगेटिव फॉर्म कौन रखा जाए पास्ट नेगेटिव फॉर्म कौन रखा जाए सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कौन आसला सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से स्ट्रक्चर देखिए हम बाकी ठीक लिखीचे कि नहीं तो सब्जेक्ट नहीं ही तापर डीड नहीं काना आम जो पास्ट सिंपल वाक्य को नेगेटिव करवा इंट्रोगेटिव करने हुए ताहले आम डीड को सहायकारी क्रिया रूपे व्यवहार कर डीड को सहायकारी क्रिया रूपे व्यवहार कला परे परे मुख्य क्रियाटी को पुणी तार बेस फॉर्म को फेर आने को पड़ी था तो से अनुसार आम डिड नॉट प्ले फुटबॉल लिखीचे से जेको सब्जेक्ट हेल्ले भी चलो कि डीड लगी माने भर्बर आउ पास्ट फॉर्म न रही प्रेजेंट फॉर्म बा बेस फॉर्म पड़े आस से अनुसार कौन करें ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल सेकेंड एग्जाम्पल कौन देचे दे डिड नॉट रीड द बुक देख से अनुसार कौन कले दे डिड नॉट डिड लगे रीड द प्रेजेंट फॉर्म पड़े आसला दे डिड नॉट रीड द बुक अर्थात सिंपल पास्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर आम क्लियर करदे देखिए तार इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कौन अच्छी डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यस पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हूँ प्रथम आम डीड नवा तापर सब्जेक्ट नवा तापर V1 प्लस ऑब्जेक्ट दी क्वेश्चन मार्क देवा प्रथम देख से करचे डीड शी कुक राइस एग्जाम्पल देचे डीड शी कुक राइस यस प्रथम डीड नवा था डीड नहीं तापर सब्जेक्ट शी नहीं कुक रखला बेस फॉर्म V1 कही तापर राइस है ऑब्जेक्ट सो बाकी क्लियर कले डिड यू हेल्प मी अनदर एग्जाम्पल देचे आम डिड यू हेल्प मी तार अर्थ सिंपली पास्ट स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हिसाब से आम कौन करें प्रथम डीड नवा कथा डीड नहीं यू ने सब्जेक्ट हेल्प ने वर्ब तापर मी आसला ऑब्जेक्ट सो आम सिंपल पास्ट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्लियर तापर आम नेगेटिव इंट्रोगेटिव के आसवा तार भी सेम स्ट्रक्चर रही नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रही सिंपल पास्ट देखा नेगेटिव स्ट्रक्चर कौन रखा जाए डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आम देखा प्रथम आगे नहीं जावा कौन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नंबर थिला सो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हिसाब से देखला कौन आसला प्रथम डीड शी कुक राइस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ना डीड प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट सरला सब स्ट्रक्चर नहीं गला आम तापर आसिया आम कौटिकी आम नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को आसवा आम आसवा कौटिकी ना नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखा नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कौन रोचे डीड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क सेम डीड ही नॉट गो देयर डीड रहा सब्जेक्ट तापर नॉट तापर गो देयर सेकेंड बैक डीड यू नॉट हेल्प मी सो ये भी सरीगला तापर हम कंट्राक्ट फॉर्म जीवा डीड नेगेटिव इंट्रोगेटिव कंट्राक्ट फॉर्म रखी कवर करवा डीड प्लस कंट्राक्ट फॉर्म नेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर देखा आम पास्ट सिंपल जोटा रहा नेगेटिव इंट्रोगेटिव कंट्राक्ट फॉर्म नॉट रहा दरकार से डिड नॉट ही गो देयर वाक्य लिखी आम कौन डिड नॉट ही गो देयर अर्थात से गले ना कि डिड नॉट ही गो देयर ये डीड पाखे नॉट को रखिले कंट्राक्ट फॉर्म सर्ट फॉर्म रे सेकेंड वाक्य डिड नॉट यू हेल्प मी ये भी शेयर रहा स्ट्रक्चर हिसाब से कौन थी ना डीड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सो आपको आम स्ट्रक्चर अनुजाई क्लियर करदे आम नेक्स्ट आसवा पास्ट प्रोग्रेसिव बा इम्परफेक्ट पास्ट प्रोग्रेसिव बा जहाँ आम इम्परफेक्ट बोली कहचे पास्ट प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट पास्ट प्रोग्रेसिव बा इम्परफेक्ट को आम कवर करवा ता स्ट्रक्चर कौन देती पास्ट प्रोग्रेसिव बा इम्परफेक्ट आमर बेसिक स्ट्रक्चर कौन रोचे प्रथम आसवा अफर्मेटिव पास्ट प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट बेसिक फॉर्म हिसाब से आमर कौन आसीज ओके पास्ट सिंपल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हिसाब से सब्जेक्ट वाज वेयर V4 प्लस ऑब्जेक्ट नबार अच्छी कौन ना सब्जेक्ट वाज वेयर V4 प्लस ऑब्जेक्ट को नबार अच्छी से रूल हिसाब से आम देखा एक्जाक्टली वाक्य लिखीचे कि सब्जेक्ट आग आई देन वाज वेयर वाज V4 रीडिंग ऑब्जेक्ट है द बुक अर्थात एक स्ट्रक्चर मतलब क्लियर अच्छी आई वाज रीडिंग द बुक सेकेंड एग्जाम्पल देखा दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट अर्थात एटी भी प्रेजेंट सॉरी पास्ट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये आमर क्लियर हो जाए तार नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए पास्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव स्ट्रक्चर कौन रखा जाए सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कौन रहे प्रथम ना सब्जेक्ट रहा रही वाज वेयर रही नॉट रही V4 रही ऑब्जेक्ट रही अर्थात जहाँ रूल थिला सब्जेक्ट वाज वेयर V4 प्लस ऑब्जेक्ट एक्जाक्टली आम से वाक्य लिखीचे दे वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट
দ্বিতীয় বাক্য সি ওয়াজ নট ওয়াচিং টিভি। দেখো এক্সাম্পল সেই ଅଛି সবজেক্ট ওয়াজ ওয়ার ওয়াজ নট প্লস ভি ফর প্লস অবজেক্ট। এই বাক্যটি ମଧ୍ୟ কমপ্লিট। আমি দেখিবা ইন্ট্ରୋଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଲେଖିଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସରି ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ରଖିଛେ ଆମେ ওয়াজ ওয়ার প্রথমে রহব সবজেক্ট রহব ভি ফোর রহব অবজেক্ট প্লস কোশ্চিন মার্ক। কোণ কোণ আসবে এটি দেখিবা ওয়াজ ওয়ার প্রথমে তারপরে সবজেক্ট তারপরে ভি ফোর তারপরে ইয়ে কার স্ট্রকচর পিলে না পাস্ট প্ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର ইন্ট্ରୋগেটিভ স্ট্রকচর। ଦେଖିବା ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ଲେଖିଛେ କି ନାହିଁ। ওয়াজ হি রিডিং দ বুক রুল ଥିଲା প্রথমে ওয়াজ ওয়ার নেবা নেইছে ওয়াজ ওয়ারକୁ তারপরে সবজেক্ট নেবা হি নেইছে তারপরে ভিফোর নেবা রিডিং নেইছে তারপরে অবজেক্ট ଅଛି দ বুক বাস তাহলে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে দিয়েছে। সো প্রেজেন্ট পাস্ট ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର ইন্ট্ରୋগেটিভ স্ট্রকচর হিসাবে আমাদের রুলକୁ এক্জাক্টলি ঠিক লেখিছে। দ্বিতীয় বাক্য ଅଛି ওয়ার ইউ গোইং টু স্কুল। এটি দেখো প্রথমে ওয়াজ ওয়ার গলা তারপরে সবজেক্ট গলা তারপরে ভিফোর গলা তারপরে অবজেক্ট যা কথা কিন্তু অবজেক্ট না কারণ অবজেক্ট আমার বাধ্যতামূলক নুহে বলে কই সারিছে। সো অবজেক্ট লেখা যায় না কিন্তু স্ট্রকচর ঠিক আছে। ওয়াজ প্রথমে যা কথা ওয়ার গলা তারপরে ইউ সবজেক্ট গোইং গলা ভিফোর অর্থাৎ টু স্কুল মিন্স ওয়ার ইউ সে স্কুলକୁ যাଉଥିଲେ কি ইয়ে भी আমার ইন্ট্ରୋগেটিভ স্ট্রকচর হিসাবে ফিলअप ହେଇଗଲା। তারপর ଦେଖିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମର ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ୍ ରନିଂ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ওয়াজ ওয়ার প্লস সবজেক্ট রুল কହୁଛି କ'ଣ না ওয়াজ ওয়ার প্লস সবজেক্ট প্লস নট প্লস ভি ফোর প্লস অবজেক্ট অর্থাৎ আমি দেখিবা নেগেটিভ ইন্ট্ରୋগেটিভ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇଠି ওয়াজ ওয়ার প্লস সবজেক্ট রহব নট রহব ভি ফোর রহব অবজেক্ট রহব কোশ্চেন মার্ক। ଦେଖିବା রুল হিসাবে প্রথমে ওয়াজ ওয়ার নেইছে ওয়ার নেলে তারপরে সবজেক্ট নেলে তারপরে নট নেইছে তারপরে প্লেইং নেইছে তারপরে ক্রিকেট হল অবজেক্ট। সো আমি রুল হিসাবে আকু কমপ্লিট করেছে ওয়াজ ওয়ার প্লস সবজেক্ট প্লস নট প্লস ভি ফোর সে আছে ওয়ার উই নট প্লেইং ক্রিকেট। এই স্ট্রকচরটি ফলো করি আমি এক্সাম্পল দিয়ে সারিছে। সেকেন্ড এক্সাম্পল দিয়েছি ওয়াজ সি নট ইটিং ম্যাঙ্গো সেই রুলস ফলো করা যাইছি ওয়াজ সি নট ইটিং ম্যাঙ্গো ওয়াজ ওয়াজ গলা তারপরে সবজেক্ট গলা তারপরে নট গলা তারপরে ইটিং যাইছি প্লস দেন ম্যাঙ্গো হচ্ছে অবজেক্ট। ইয়ে ଥିଲା কমন ফর্মটা এটা আমি দেখিবা কন্ট্রাক্ট ফর্ম মধ্যে সেই আমি কেমতি ইউজ করছে দেখিবা ওয়াজ ওয়ার প্লস কন্ট্রাক্ট ফর্ম নট প্লস সবজেক্ট প্লস ভি ফর অবজেক্ট প্লস কোশ্চিন মার্ক। দেখা সেয়া করা যাইছে কি নাই ওয়ার নট দে ওয়াচিং টিভি এক্জাক্টলি আমি কইলে যদি কন্ট্রাক্ট ফর্ম করা তাহলে সে সাহায্যকারী ক্রিয়া পাখে নটর সর্ট ফর্ম ব্যবহার করা সে বি করেছে ওয়ার নট করেছে এপটে ওয়াজ নট করেছে ওয়াজ নট হি প্লেইং ক্রিকেট অর্থাৎ এটি বি নেগেটিভ ইন্ট্ରୋଗେଟିଭ୍ର ନଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫର୍ମ ହିସାବରେ এই রুলକୁ আমি প্রপরলি ফলো করে পারিছে। তারপর দেখিবা আমি পাস্ট পরফেক্টକୁ যাউছে পাস্ট পরফেক্টর আফার্মেটিভକୁ ଯିବା। পাস্ট পরফেক্টর আফার্মেটিভ স্ট্রকচর হচ্ছে সবজেক্ট প্লস হার্ড প্লস ভি থ্রি প্লস অবজেক্ট। କ'ଣ ରଖିପାରିବା প্রথমে সবজেক্ট নেবা প্লস হার্ড নেবা প্লস ভি থ্রি নেবা তারপরে অবজেক্ট নেবা। এটা পাস্ট পরফেক্টর আফার্মেটিভ স্ট্রকচর সেই অনুযায়ী প্রথমে সবজেক্ট উই হার্ড ইনভাইটেড দেম প্রথমে যাইছে সবজেক্ট উই তারপরে হার্ড নেইছে তারপরে ভি থ্রি নেলে তারপরে অবজেক্ট নিয়ে গেলে যাহা আমি স্ট্রকচর লিখিছে যে সবজেক্ট হার্ড প্লস ভি থ্রি আমি এক্জাক্টলি সেই স্ট্রকচর আপ্লাই করছে উই হার্ড ইনভাইটেড দেম। সেকেন্ড এক্সাম্পল କ'ଣ লিখিছে শি হার্ড গট দ ইমেল প্রথম কথা কোন সবজেক্ট সি গলা সবজেক্ট তারপরে হার্ড রয়েছে তারপরে ভি থ্রি গলা তারপরে অবজেক্ট হল ইমেল। তো এটি মধ্যে আমার আফার্মেটিভ স্ট্রকচর পাস্ট পরফেক্টর আফার্মেটিভ স্ট্রকচর এই ক্লিয়ার। দেখিবা নেগেটিভ স্ট্রকচর ঠিক আছে কি না ଆମ ପାଖରେ নেগেটিভ স্ট্রকচর କ'ଣ କହୁଛି সবজেক্ট হার্ড নট প্লস ভি থ্রি প্লস অবজেক্ট କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ହାର୍ଡ଼ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଥ୍ରୀ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ସେଇ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛେ କି ନାହିଁ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ହି ରହିଲା ତାପରେ ହାର୍ଡ଼ ରହିଲା ତାପରେ ନଟ୍ ରହିଲା ତାପରେ ବଟ୍ ବା ଭି ଥ୍ରୀ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଲ୍ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛେ କାରଣ ନଟ୍ ଲାଗିଛି ପରଫେକ୍ଟ ଆଫାର୍ମେଟିଭ୍ ଯାହା ଥିଲା ନଟ୍ ଲଗାଗଲା ସେଇ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ରହିଛି। আমার সেকেন্ড এক্সাম্পল মধ্যে দে হ্যাড নট নোন হিম ইয়ে বি এক্জাক্টলি ক্লিয়ার রয়েছে স্ট্রকচরকে ফলো করেছে। তারপরে দেখা পাস্ট পরফেক্টর ইন্ট্ରୋগেটিভ স্ট্রকচর ঠিক আছে কি নাই। পাস্ট পরফেক্টর ইন্ট্ରୋগেটিভ স্ট্রকচর কହୁଛି যে প্রথমে আমি କ'ଣ নেবা না হার্ড নেবা তারপরে সবজেক্ট নেবা তারপরে ভি থ্রি নেবা তারপরে অবজেক্ট নিয়ে কোশ্চেন মার্ক দেবা। প্রথমে କ'ଣ নেবা না হার্ড তারপরে সবজেক্ট তারপরে ভি থ্রি তারপরে অবজেক্ট প্লস কোশ্চেন মার্ক। দেখিবা আমি এক্সাম্পল সেয়া করেছে কি হ্যাঁ প্রথমে রুল হিসাবে হার্ড নেবা তা হার্ড নেইছে তারপরে ইউ নেইছে তারপরে ভি থ্রি সি নেইছে দ্যাট পিকচর হল অবজেক্ট। সো আমি এক্জাক্টলি তাকে মধ্যে ফলো করেছে। দ্বিতীয় বাক্য হার্ড হি টেকেন মাই পেন্সিল সো প্রথমে রহতা হি হার্ড রাখছে তারপরে সবজেক্ট নেইছে তারপরে ভি থ্রি টেকেন নেলে তারপরে অবজেক্ট নিয়ে কমপ্লিট কলে তার অর্থ পাস্ট পরফেক্টর ইন্ট্ରୋগেটিভ বাক্য মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গলা। সো আমি দেখিবা
पास्ट परफेक्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव ठीक ठाक रनिंग करुच्चे कि ना पास्ट परफेक्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव ठीक ठाक रनिंग कर देखी ना तार स्ट्रक्चर केमती कभर कर देखिए तार हार्ड प्लस नॉट माने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नॉट सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रूल कौन करे ना प्रथम हार्ड नहींचे तापर नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म सर्ट फॉर्म नहींचे तापर सब्जेक्ट अच्छी तापर V3 प्लस ऑब्जेक्ट रनिंग करे से हिसाब से देखा ठीक करे कि ना आम had not he gone there with you exactly आम रूल्स फॉलो करें हार्ड नॉट पाखे हार्ड पाखे कंट्राक्ट फॉर्म खाते नॉट रखीचे had not he gone there with you सेकंड वाक्य had not you invited गीता had not you invited गीता अर्थात तुम ये भी स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली फिलअप करें स्ट्रक्चर को ठीक अप्लाई करें आम कंट्राक्ट फॉर्म गला तापर मेन फॉर्म देखा हार्ड सब्जेक्ट नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क मैंने जोटा कि सब्जेक्ट पर नॉट लगे आशा कहुला से फॉर्मटा तो हार्ड यू नॉट डन दैट एग्जाम रहा सब्जेक्ट प्रथम हार्ड रहा कथा सब्जेक्ट नॉट रही देख से रूल हिसाब से हार्ड यू नॉट सब रही जमी स्ट्रक्चर रहा कथा थर्ड है कौन सेकेंड वाक्य कौन देना हार्ड ही नॉट सेंट यू मनी एक्जाक्टली जहाँ स्ट्रक्चर था से स्ट्रक्चर सेंटेंस एग्जाम्पल कंप्लीट करदेला आम सो देखिए पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर ठीक कभर करा कि नहीं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर एक्जाक्टली से कभर करा तार आफर्मेटिव स्ट्रक्चर कौन रखा सब्जेक्ट हार्ड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कौन है प्रथम रहा दरकार पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आफर्मेटिव स्ट्रक्चर यह कहूँ प्रथम सब्जेक्ट हार्ड बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट रे देख ही हार्ड बीन रनिंग एग्जांपल जहाँ दी जाइए सब्जेक्ट ही हार्ड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट दरकार नाला आम लिखी ना सेकेंड वाक्य वी हार्ड बीन डांसिंग इन द क्लास ये एग्जाम हम क्लियर करदे सब्जेक्ट हिसाब प्रथम सब्जेक्ट ने वी हार्ड नहीं बीन नहीं डांसिंग ने V4 इन द क्लास रहीगला अर्थात तार आफर्मेटिव स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्लियर हो गला नेगेटिव स्ट्रक्चर भी जावा सब्जेक्ट खाली जस्ट नॉट व्यवहार करवा जहाँ लगे नॉट व्यवहार करदेगा वाक्य भी कंप्लीट हो गला सब्जेक्ट हार्ड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात यही वाक्य आम कौन कले ना आम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करें जमी स्ट्रक्चर से कले आम से वाक्य लिखते देखा वी हैड नॉट बीन रीडिंग द स्टोरी बुक वी हैड नॉट बीन स्ट्रक्चर हिसाब प्रथम सब्जेक्ट वी हार्ड नॉट बीन V4 द स्टोरी बुक अर्थात स्ट्रक्चर जमी एग्जाम से व्यवहार करते सेकेंड एग्जाम से अच्छी सी हैड नॉट बीन ईटिंग दोज एप्पल्स जो स्ट्रक्चर आम लिखीचे ऊपर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव स्ट्रक्चर एक्जाक्टली से आम से वाक्य लिखीचे देन आस आम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कौन कहूँ ना प्रथम हार्ड नवा देन सब्जेक्ट नवा बीन नवा V4 नवा ऑब्जेक्ट नहीं क्वेश्चन मार्क दबा से देखा वाक्य लिखीचे कि नहीं प्रथम कौन नवा कथा ना हार्ड नहीं देख ही नहीं सब्जेक्ट बीन नहीं रूल तो से V4 हेल्पिंग नहीं ऑब्जेक्ट नहीं अर्थात जहाँ जहाँ आम स्ट्रक्चर लिखीचे आम से अनुजाई वाक्य लिखीचे सेकेंड वाक्य से अच्छी हार्ड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल अर्थात स्ट्रक्चर आम जहाँ लिखी से फॉलो कले नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखा जे आम नेगेटिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कौन हो पार तो से हिसाब से देखा आम प्रथम नवा ये नहीं जाइए प्रथम नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हार्ड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं तार ये आम कौन करें ना हार्ड पाखे नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं ही अर्थात सब्जेक्ट नहीं आम ही नहीं हीटा हूँ कौन मोर देन सब्जेक्ट प्लस नहीं बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं गले सो से देखा से स्ट्रक्चर को फॉलो करें कि हार्ड नॉट ही बीन हेल्पिंग यू अर्थात आम कही हार्ड पाखे नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं ही नहीं सब्जेक्ट बीन नहीं V4 नहीं गले एक्जाक्टली जहाँ स्ट्रक्चर जावा कथा से स्ट्रक्चर हम फॉलो करें सीखा सेकेंड वाक्य हार्ड नॉट दे बीन ईटिंग मैंगोज से स्ट्रक्चर हार्ड नॉट पाखे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नॉट रही सब्जेक्ट बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट व्यवहार कर क्वेश्चन मार्क देते तार नॉर्मल फॉर्म देखा हार्ड सब्जेक्ट नॉट बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात जो आम नॉट सब्जेक्ट पर लगे कहुला देख से लगी हार्ड दे नॉट बीन स्लीपिंग एक्जाक्टली हार्ड रहा सब्जेक्ट रहा नॉट रहा बीन रही V4 ही कंप्लीट करागला हार्ड दे नॉट बीन स्लीपिंग अर्थात
परफेक्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य मतलब क्लियर आउ गोटे एग्जाम रहीगला had he not been singing songs had he not been singing songs ये मध्य क्लियर हो गला डियर स्टूडेंट्स हमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट करदे सब देख प्रत्येक फॉर्म स्ट्रक्चर मेंशन करछि स्ट्रक्चर तले तले दुई दुई एग्जांपल मते देछि तुमको सहज बुझीबा पई सो दया करी सबुतक स्ट्रक्चर को माइंडफुल देख तुम केबे भी आउ टेंस भूल हबो नाही केबे भी कौन सी पैसे तुम टेंस भूली पाइबो नहीं दिस इज स्पेशली मीन फॉर तुम सीबीएसई स्टूडेंट हो आईसीएसई स्टूडेंट हो सीएचई स्टूडेंट हो जहाँ भी हो ना कहीं तुम मैंने चाहब कोई टेंस को प्रॉपर्ली अप्लाई कर इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट समस्त आम बर्तमान देखीदा जो फ्यूचर और फ्यूचर टाइम रेफरेंस अर्थात आम जाचे जे फ्यूचर टेंस आम व्यवहार करार ना किंतु आम फ्यूचर टाइम को रेफर कर टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम वी कैन यूज द फॉलोइंग टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने फॉलोइंग टेंस फॉर्म व्यवहार करा कहुला अर्थात प्रथम हूँ मॉडल शाल व्यवहार करके फ्यूचर बाहर कर पार जार एक्चुअली मीनिंग होची कौन अनप्लान्ड एक्शन आम अनप्लान्ड एक्शन बा आगुरी प्रिपेयर न कर आगुरी रेडी न होता गोटे एक्शन को शो करने एग्जाम्पल देचे जस्ट वेट आई विल गो विथ यू जस्ट वेट आई विल गो विथ यू अर्थात मोर किसी प्लान नाला मुझे देखिकी वेट करने कहली आ जावाई कहली से फ्यूचर एक्सप्रेशन कले आम शाल वी एवर गो देयर आम से जावा कि अर्थात आम जानी ठीक अनप्लान्ड जेहेतु प्रथम कथा मॉडल यूज रहा शाल व्यवहार करागला अनप्लान्ड एक्शन अर्थात आपको फ्यूचर एक्सप्रेशन करने फ्यूचर टाइम आम आपको व्यवहार कले सेकेंड हूँ बी गोइंग टू अर्थात फ्यूचर एक्शन बट प्रेजेंट इंटेंशनल डिसीजन एक्शन हम फ्यूचर कि वर्तमान आम कौन करचे इंटेंशन लिखीचे डिसीजन नहींचे से अनुसार देख वी आर गोइंग टू विजिट आवर अंकल्स हाउस आम अंकल्स हाउस विजिट करने जीवु एबेठू केबे डेट फिक्स करने पर जीवार अच्छी एबेठारू आम प्लान करूँ एक्जाक्टली से ही वाक्य शी इज गोइंग टू कुक फॉर देम से रोषे करने जाऊँगी करना करेंगे घटना घटना केबे फ्यूचर रे किंतु प्लानिंग सरी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्लान प्रोग्राम फॉर फ्यूचर एक्शन अर्थात घट भविष्य में प्लानिंग पूर्व हाँ वी आर गोइंग टू कटक टुमोर टाइम फ्यूचर है ये आसंता काली आम कटक जाऊँ हाँ आम आसंता काली कटक जाऊँ रहा टेंस है प्रेजेंट रे टाइम है फ्यूचर मेंशन कर दे आर गोइंग टू मीट अस नेक्स्ट वीक ये भी रहीगला फ्यूचर टाइम हिसाब से अर्थात फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करने आम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव व्यवहार कर बी अबाउट टू फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करने बी अबाउट टू व्यवहार कर ट्रेन इज अबाउट टू लीव द स्टेशन ये देख ट्रेन इज अबाउट टू लीव बी अबाउट टू लीव जो कहला आम जीवा छाड़ा उपर ये आम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन करचे बी अबाउट यूज करके विल बी प्लस भी फॉर करके आम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन कर आई विल बी रीडिंग द बुक ये फ्यूचर टाइम व्यवहार कले दे विल बी वाचिंग टीवी एठी आम फ्यूचर टाइम व्यवहार करचे ताकि फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन करने विल हैव प्लस V3 दे विल हैव गॉन देयर ये भी आम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन करचे शी विल हैव कुक्ड फॉर ऑल ये आम फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन करचे डियर स्टूडेंट्स आम बर्तमान प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टाइम कथा जस्ट शॉर्टली डिस्कसन करें तथापि जार जहाँ भी डाउट रोचे टेंस स्ट्रक्चर को लेकर मत से कमेंट बॉक्स माध्यम पचारि पारे मोर विश्वास यदि सब स्ट्रक्चर को भल भाव समस्त देख कहार केबे भी आउ टेंस प्रोब्लेम रहिबो नाही थैंक यू स्टूडेंट्स आउ थे मन पकड़ जो मैंने बेसुधा मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव द बेल आइकन को टच करूँ जमीक मोर सब वीडियो तुम पाखे निश्चय पहुँच पार थैंक यू स्टूडेंट प्लीज अगेन आई से यू प्लीज गो थ्रू द स्ट्रक्चर्स बिट बाय बिट तुम सहजरे सबू टेंस को जानी पारिबो।